बंद हो जा रहा है. Now I'm starting from question number 8 का 2. Listen here. So it is doubt. बहुत लोग का doubt 8 का number 2 में. So you have a complex number z equals to -7 plus 0I, and you are asked to determine its multiplicative inverse. So multiplicative inverse is nothing but the reciprocal of a complex number. Now what is the reciprocal of this complex number? So reciprocal of this complex number is 1 by -7 plus 0I. And after multiplicative inverse, your objective is to express this complex number in standard form. And what is the standard form of a complex number? It is x plus iy. Now, you have to also check whether denominator is purely real or it also contains imaginary term. So you clearly find that you have -7 plus 0I, which is -7. So what is the standard form of this complex number? It is simply -1 by 7 plus 0I and nothing else. You don't have to rationalize also because imaginary part is nothing. देखो यहाँ पे imaginary part क्या है? 0 into I. So what is 0 into I? It is 0. So it is simply 1 by -7. तो ये हमको कुछ करना ही नहीं है इसमें. Simply reciprocal कर देना है. This is your answer. Yes, any more doubt here? किसी को कुछ पूछना है इसमें? And please mute your device जिसका भी on है. इसमें किसी को कुछ पूछना है? Okay, next. उसके बाद नंबर 12 डाउट है, शायद मुझे किसी ने बोला था 12 का कौन सा सम डाउट है, बताना एक बार. 12 का नंबर 5 देखना एक बार. So I hope this is clear everyone. Like it's like अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली 1 by 2 रेसिप्रोकल, और कुछ करना ही नहीं इसमें. Now question number 12 का 5. So we have a complex number. I am assuming that complex number is z. So it is root 5 minus 7i, root 5 minus 7i का whole square plus minus 2 plus 7i का whole square. So everyone note down. What is root 5 minus 7i into root 5 minus 7i का whole square? It is root 5 minus 7i का whole cube. All right. We can write this as 7i minus 2 का whole square. Is this okay, everyone? Minus 2 plus 7i can be written as 7i minus 2 का whole square. Let us apply a minus b whole cube का formula, which is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Is this okay? 3ab square. यहाँ पे a minus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई करना. a square plus b square minus 2ab. रूट 5 का होल क्यूब हो जाएगा 5 रूट 5, है कि नहीं? Because it is root 5 into root 5 into root 5. So this becomes 5 into root 5. 7i का whole cube will be I cube और 7 का cube कितना हो जाएगा? It's 343. Root 5 का square will become 5. 5 into 7 is 35. 3 जा 105. 7 square is 49. 3 जा 147. रूट 5 उसके बाद i का स्क्वायर विल बी i स्क्वायर. दिस इज 49i स्क्वायर 4 minus 28i. What is the value of I cube? The value of I cube is minus I
Okay, this is minus 105i. The value of I square is minus 1. So plus into minus is minus 147 root 5 minus 49. After simplification is over, now let us separate the real terms. तो ये हो गया रियल टर्म, ये हो गया, ये और ये सारा को सेपरेट कर लेते हैं. 5 root 5 minus 147 root 5 minus 49 plus 4. इसको सेपरेट मतलब रियल टर्म्स को सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट कर दिया. माइनस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस 28i माइनस 105i. ना इन सबको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा. देखना इनको इसको और इसको सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा माइनस 142 root 5. इज दिस क्लियर? 5 root 5 minus 147 root 5 is minus 142 root 5. Minus 49 plus 4 is how much? Minus 45. Keep it in bracket. Then let's simplify this. So we have 343 minus 13, 3, 1, 0, 1, 2. 210. It's 210i. So this is your result. ये हो गया पूरा सिंप्लीफाइड. इसका पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया. मतलब इसका अगर तुमसे पूछा जाए कि विच इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट. विच इज द इमेजिनरी पार्ट, 210. आई होप इट इज क्लियर. योर नेक्स्ट डाउट आई थिंक इसके बाद 14 था. 14 अभी रुक जाए, एक बार मैं बताऊंगा, डोंट वरी. इसके बाद और कोई डाउट है 14 के बाद? 15 से कोई डाउट? 15, 16, 17 कोई डाउट है किसी का? अच्छा, लास्ट डे मैंने बोला तो था लेकिन ये सब सम्स नहीं करना था. 18, 19 पे दिमाग नहीं लगाना है. 18, 19 देन इस पे दिमाग नहीं लगाना है. एंड देन इट वाज 21 तो बोल ही दिया था नहीं करना है. अच्छा, अब बोलो डाउट क्या है ये सब छोड़ के. एनीवन? नंबर? जस्ट लेट मी वंस क्लियर दिस थिंग. लास्ट डे मैंने लिखा था, हो सकता है कुछ मैं मिस कर दिया. नंबर 13 अभी नहीं करना है, कराएंगे हम, अभी नहीं करना है. 13 नंबर, देन नंबर, हाँ ठीक है हो गया होगा, लेकिन अभी हम इसको एक और तरीके से हम खुद बाद में बताएंगे. तो तुम खुद देखना कि हम क्यों बोल रहे थे कि उस समय नहीं करने के लिए. अभी हम बता देंगे, एक मेथड से बता देंगे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन यू दैट मेथड. आई विल एक्सप्लेन यू जब हम बताएंगे, तुम खुद देखना, तुम समझ में आ जाएगा. सो राइट नाउ यू डोंट डू नंबर. सुनना एक बार. 13, 18, 17, उसके बाद नंबर 21, ये सब नहीं करना है, बाकी सब करना था. So tell me like leaving these sums, what are your doubts? Leaving these questions, what are your doubts, anyone? हाँ 17 तो कल ही कर लिया था. नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसको छोड़ के और कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट सम, नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो एवरीवन लिसन हियर. नाउ फर्स्ट लीव 9c. हाँ बोलो. हाँ मैं बोला तो 14 में कराऊंगा, जब जैसे 13 छूटा हुआ है तो ये सब जब मैं वो सब कराऊंगा तो मैं फिर से हमको ध्यान रहेगा. यू डोंट वरी, हमको ध्यान रहेगा हम क्या छोड़े, तुम लोग का क्या डाउट था सब हमको याद रहेगा. डोंट वरी. नाउ लिसन हियर एवरीवन. 9d अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि ये पूरा टाइम में टॉपिक में दे दूँ, मतलब यूटिलाइज करूँ. तो 9c, 9d और 9e अभी हम लोग नहीं करेंगे. और 9e तो वैसे भी हम अभी नहीं बताएंगे, ये अभी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है. 9f करेंगे हम लोग क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9f. तुम देखना एग्जाम में बहुत ज्यादा सम्स होगा 9f से, और एकदम अलग टॉपिक है. तो एक बार ध्यान से सबको देखो ये एक्सरसाइज को. कुछ भी नहीं कटा है. अगर किसी के पास अभी सिलेबस है तो एक बार निकाल के थोड़ा रीड करोगे, एक बार मैं फिर से एक बार देख लूं. बोलो तो एक बार. यस एनीवन, कैन यू हेल्प मी? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार चैप्टर निकालो तो जो कटा हुआ है, जिसमें है ना जो पोर्शन में कि क्या कटा है क्या नहीं, एक बार वो देखो तो. एक बार थोड़ा देखो तो वहां पे लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सिलेबस में. चेक वंस. एनीवन हु इज checking, anyone? हाँ तो इसीलिए लोकस पार्ट मैंने किया कराया नहीं. मैं जो बोल रहा हूँ ना नहीं कराएंगे, दैट इज लोकस पार्ट ओनली.
विच इज एक्सरसाइज 9। 9 हम कराएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता था कि अगर वो हटता नहीं हटता एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन, दैट इज फॉर श्योर। मैं बिना देखे ही मैंने बोला 9 आएगा ही नहीं तुमको, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा। तो वैसे तुम लोग बोल ही रहे सिलेबस से हटी है। और बोलो तो कुछ, यस एनीवन, लाइक अगर सिलेबस तुम्हारे आगे हो तो एक बार रीड करो, तो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है टॉपिक्स। प्लीज हरी अप, वन ऑफ यू। एक बार रीड, अच्छा एक बार खोजो तो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा है कहीं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सिर्फ वो पार्ट पढ़ो तो क्या है। अब वो पार्ट पढ़ो तो क्या है। क्या बोलो तो क्या लिखा है, फिर से बोलो। हम्म 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 हम्म, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी राइट नाउ। This is the major topic left in our complex number, and after that there is few things are left. So let's do first of all cube roots of unity. And locus we will not do. Locus का part exam में नहीं आएगा, that is for sure. हाँ, ई छोड़ के बाकी सब कुछ करना है। और तुम्हारे एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आएगा? फर्स्ट एक्सरसाइज बी से और एक्सरसाइज एफ से। ठीक है, एक्सरसाइज एफ से तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यही से रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन तो। सो एक बार ध्यान देना सब कोई। So now we are starting, everyone. I want your attention here. So this is cube roots of unity. Okay. The topic is cube roots of unity. So ध्यान देना एक बार। जैसे ध्यान से एक चीज नोट करो, हमको याद है किसी स्टूडेंट ने तुम्हारे बैच से जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहा था, तब किसी ने पूछा था, लिसन हियर एवरीवन वेरी केयरफुली, यू नो दैट द नंबर ऑफ रूट्स, the number of roots of an equation is dependent on its degree. I repeat, the roots of any equation is dependent on its degree. तो वहां पे कितना रूट्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है? उसका डिग्री क्या है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो देखना हमेशा 2 रूट्स आते हैं, मतलब 2 सॉल्यूशन आते हैं। वो अलग बात है कि कभी लाइक वी फाइंड दैट समटाइम the roots are real and equal, sometimes the roots are real and unequal, sometimes real and I mean real, okay, मतलब रियल होता है, रियल के साथ इक्वल होता है, रियल के साथ डिस्टिंक्ट होता है, दो चीज, और कभी कभी इमेजिनरी हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है, क्लियर? अगर मान लो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है और मैं तुमसे पूछूं कि एक्स का कितना आंसर होगा, तो 3 आंसर होना चाहिए कि नहीं? बता, 3 आंसर होना चाहिए। एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल, नहीं मैं ये बोल रहा हूं तुम लोग से कि जैसे यहाँ पे रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जिसका रूट्स 2 होता है, तो उसको सॉल्व करके 2 आंसर मिलेगा एक्स का, है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम वे मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसके लॉजिक से जो मैंने बोला, उस लॉजिक से इसका तो 3 आंसर होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? जैसे ठीक है, तो वो 3 आंसर्स निकालने के लिए Now let us see this part. ये हम लोग का आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होगा कि वो जो 3 पार्ट है उसमें हम लोग हमेशा एक ही पार्ट क्यों लिखते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4। एम आई करेक्ट? अगर वैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। वैसे अगर मान लो एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू क्या हो गया? सिर्फ 2 हो गया, है कि नहीं? बट क्या सिर्फ 2 ही आंसर होगा? नहीं, और भी 2 आंसर होगा। वो 2 आंसर क्या होगा? दिस इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, कि वो 2 आंसर हम लोग लिखते क्यों नहीं है, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। होता है 2 आंसर, मतलब 3 आंसर्स होता है टोटल, बट व्हाई डू वी इग्नोर द अदर 2 आंसर्स? इसका मैं आज रीजन बताऊंगा कि हम लोग क्यों इग्नोर करते हैं उसको। सो ध्यान से एक बार नोट करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव x square equals to 1. Tell me what is the value of x? How many values of x will satisfy this equation? And if you have x cube equal to 1, देखो, if you have x cube equal to 1, how many values of x will satisfy this equation?
If you have x square equal to 1, how many values will satisfy this equation? Here you will have two answers, but here you only write one answer. पर तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज एक क्वेश्चन मार्क बन जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क बन जा रहा है कि मैंने तो बताया कि क्वाड्रेटिक तो दो आंसर, क्यूबिक मतलब तो तीन आंसर होना चाहिए, फिर ये एक आंसर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, वो बाकी दो आंसर कहां गए? सो लेट्स सी टुडे दैट पार्ट. नाउ सबसे पहला चीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है, यूनिटी मतलब वन. ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन. तो वन का क्यूब रूट क्या होगा? वन का क्यूब रूट क्या होगा? लेट अस सी नाउ. Now let us denote this with, let us represent the value of cube root of 1 with x. Now, x equal to cube root of 1 can be written as x equals to 1 to the power 1 by 3, alright? क्या मैं इसको लिख सकता हूं x cube equals to 1? Yes. If x equal to 1 to the power 1 by 3, now you say that 1 to the power 1 by 3 is 1. Why we are making it complex? Listen here, मैं जो बता रहा हूँ solution को एक बार ध्यान से देखो. X equals to 1 to the power 1 by 3. X cube equal to 1, yes or no? Tell me. If x cube is 1, x will become what? 1 to the power 1 by 3 or cube root of 1. Cube root of 1 का मतलब और 1 to the power 1 by 3 का मतलब सेम होते हैं. जब भी पावर शिफ्ट होता है मतलब लेफ्ट टू राइट, तो पावर रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1 by 3 का रेसिप्रोकल 3 हो गया, और ये राइट में शिफ्ट होगा तो 1 by 3 हो जाएगा. अब देखो, लेट अस ब्रिंग 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and can I write 1 as 1 cube? In order to factorize this equation, I am writing 1 as 1 cube and applying a cube minus b cube का formula. What is a cube minus b cube का formula? Formula is a minus b into a square plus b square plus ab. All right everyone, मैंने क्या किया? a cube minus b cube का formula क्या होता है? a minus b into a square plus b square plus ab. So either x minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. If x minus 1 is 0, what is the value of x? It is 1. और यहां से सॉल्व करके हम लोग x का देखते हैं क्या वैल्यूज आता है. Now this is a quadratic equation and it cannot be factorized, so we can solve and obtain the values of x by applying Sridhar Acharya formula. I repeat, this quadratic equation cannot be middle term factorized. Middle term factorization जो होता है वो हम लोग नहीं कर सकते. तो इसको x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला मेथड. And it is x equals to minus b plus minus b square, which is 1 square, minus 4 into a into c, that is 1, divided by twice a. So we have x equals to minus 1 plus minus 1 minus 4 is how much? Minus 3 by 2 1 ja 2. So we are finding that after solving a cubic polynomial, we are getting three answers. One answer is x equals to 1 and the other two answers are x equals to, now just note down everyone, can I write square root of minus 3 as, क्या मैं square root of minus 3 को root 3i लिख सकता हूँ? Yes. लास्ट डे तुम लोग देखा था एक क्लास पहले कि हम लोग square root of minus 3 को root 3i लिख सकते हैं. तो square root of minus 3 को हम लोग क्या लिख देंगे? minus 1 plus minus root 3i. All right everyone. So we are finding that after solving a cubic polynomial, cubic equation, मतलब ये क्या है बताओ तो? ये तुम्हारा x का पावर 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 2 होता है और ये क्यूबिक है. तो इसमें हम लोग सॉल्व करके x का तीन आंसर्स आ रहे हैं. एक है x इक्वल्स टू 1, दूसरा है x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2 और तीसरा आंसर है x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2. नाउ माय क्वेश्चन गोज टू यू ऑल, व्हाई डू वी एवरी टाइम राइट ओनली वन आंसर? जब भी तुमको बोला जाता है x cube equal to 1, what is the value of x? So why do you write 1? Why do you ignore the other two answers? Anyone who can give me the answer for this?
Yes. Is my voice audible to you all? So can you just respond and tell me? So can you respond and tell me why don't you write these two answers? You are finding that you are also getting, I mean, the other two answers, like जो हम लोग नहीं लिखते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखते थे? बता सकते हो इसका रीजन क्या है? Exactly, because see, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को एक्स का कौन सा वैल्यू निकालना था? रियल वैल्यूज। लेकिन एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का जो तीन आंसर आ रहा है उसमें एक आंसर रियल है, बाकी दो आंसर क्या है? इमेजिनरी है। सो दैट्स वाई हम लोग हमेशा क्या करते थे, वो दो आंसर को लिखते नहीं थे, बिकॉज हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? रियल रूट्स निकालना। एंड यू नो दैट आफ्टर सॉल्विंग अ क्यूबिक इक्वेशन, एक अगर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, तो हमेशा उसको सॉल्व करके जो तीन आंसर आएगा उसमें एक आंसर रियल होगा, बाकी दो आंसर हमेशा क्या होगा? इमेजिनरी होगा। एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन सॉल्यूशन के हिसाब से ये दो आंसर पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते थे। बट आंसर तीन ही आएगा, एक दो तीन। एवरीवन कॉपी डाउन टिल फर्स्ट। नाउ विल डिराइव द रिलेशनशिप। एवरीवन कॉपी डाउन। इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप डिराइव करेंगे कि इसका कैसे रिलेटेड है, इससे हम लोग कुछ हम लोग फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। एक बार पहले कॉपी करो यहाँ पे। मतलब क्यूब रूट ऑफ वन इज नॉट वन। क्यूब रूट ऑफ वन का आंसर वन इज जस्ट द रियल वैल्यू, रियल सोल्यूशन, बट देयर आर अदर टू आंसर्स आल्सो। ओके, एक सेकंड। So I repeat once again, just note down. So just let's start from this line. Suppose you have x cube equals to 1, okay? तो x cube equal to 1 को सॉल्व करके x का जो एक आंसर तुम लोग हमेशा लिखते आ रहे हैं, this is only the real solution. You have other two solutions also which are complex in nature. Clear? देखो ये रहा. Now, how to solve this? Now let me explain you this part once again. 1 को मैंने लेफ्ट में लिया, इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने 1 को 1 क्यूब लिखा, और यहाँ पे मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, which is a minus b into a square plus b square plus ab. Now by product zero rule, let us equalize x minus 1 with 0 and x square plus x plus 1 with 0. इसको सॉल्व करके x का एक आंसर आ गया 1, और इसको सॉल्व करके जो दो आंसर आया, they are imaginary, and you can say that it is, you know now you can use appropriate term that this is complex, और ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ तो? दोनों जो आंसर्स है एक दूसरे का कंजुगेट है। देखो, -1 plus √3i -1 minus √3i, and what is the meaning of conjugate of a complex number? It is nothing but we change the sign of the imaginary part. Clear? Now let us see the relationship. ये तीनों रूट्स को लेकर के हम लोग रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं कि क्या रिलेशनशिप आएगा तीनों रूट्स को यूज करके। ध्यान देना। नाउ
इस रूट्स में से एक रूट्स को हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा अज्यूम करेंगे, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग वन रूट एज ओमेगा, वन कॉम्प्लेक्स रूट्स एज ओमेगा। आई रिपीट, out of these three roots you are finding that one is real roots, the other roots are complex and they are conjugate of each other. So out of these two complex roots, if I consider one as omega, omega is a new sign notation for you all, और omega w जैसा लिखा जाता है, कैपिटल w नहीं, स्मॉल w जैसा ही लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको ओमेगा ले लिया एक रूट्स को, ठीक है, लेट ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। तो देखना तुम लोग इसका स्क्वायर करने से ये आ जाएगा। चेक करो एक बार, हम लोग अगर एक रूट्स को, किसी भी एक रूट्स को, कॉम्प्लेक्स रूट्स को, प्लीज मेक श्योर दैट देयर आर थ्री रूट्स, वन इज रियल, द अदर टू आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर कंजुगेट पेयर। So out of these two complex roots, if I consider any one, I did not say that first one, any one as omega, clear? And if I square this result, if I square both the sides, we will find that the result will be equals to what? The other complex roots. देखो इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसमें हम इसको लिख सकते हैं √3i माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, √3i माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। √3i का होल स्क्वायर हो जाएगा 3i स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√3i डिवाइडेड बाई 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? इट इज -1. So 3 into -1 becomes -3. What is -3 plus 1? It is -2. Clear? Let's take 2 common from the numerator. If I take 2 common from the numerator, we will find that denominator से cancel हो जाएगा। देखो एक बार 2 कॉमन लेकर के, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? इट इज -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। सो जस्ट नोट डाउन, एक बार ध्यान से इस चीज को नोट करो तुम लोग। हम लोग ने स्टार्टिंग में इस चीज को ओमेगा लिया था, पहला कॉम्प्लेक्स रूट्स को, तो देखो इससे जो स्क्वायर करके जो रिजल्ट है, देखो ये ओमेगा स्क्वायर मतलब ये है, देखो तो एक बार चेक करो तो सब कुछ, ठीक है। और अगर मान लो तुम लोग इसको ओमेगा लेते हैं तुम लोग और इसको स्क्वायर करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। So if I, out of this complex roots, if I consider any one root as omega, एक रूट को अगर हम ओमेगा से डिनोट करें तो इसका स्क्वायर करके दूसरा रूट्स मिलेगा। क्लियर एवरीवन? जस्ट चेक एवरीवन वंस अगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिराइव हम कर रहे हैं जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला को यूज करके पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। नाउ ध्यान देना एक बार, तीसरा पॉइंट, मैंने एक कॉम्प्लेक्स रूट्स को ओमेगा लिया तो उसका स्क्वायर करके दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट मिला। अब ध्यान देना एक बार, लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द कॉम्प्लेक्स रूट्स। बोथ द कॉम्प्लेक्स रूट्स मींस इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब एक को मैंने ओमेगा से डिनोट किया और दूसरा को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया। अब लेट्स सी कि मल्टीप्लाई करके क्या आता है। सो इफ आई मल्टीप्लाई बोथ दिस कॉम्प्लेक्स रूट्स, देखो एक बार यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां से भी माइनस साइन कॉमन ले लेना, 1 प्लस √3i। क्यों कॉमन लिया मैंने? नाउ 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, √3i का होल स्क्वायर इज 3i स्क्वायर। What is the value of I square? -1. So minus into minus is plus. 1 plus 3 by 4 is how much? 1. So we find that अगर 3 रूट्स से जिसमें एक रियल है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स है, और कैसा कॉम्प्लेक्स है, दोनों में रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, ये चीज को समझना तुम लोग। कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं, दोनों एक दूसरे का क्या है? कंजुगेट है।
तो अगर इस केस में एक रूट्स को अगर मैं ओमेगा अज्यूम कर रहा हूं, उसका स्क्वायर करने से तुम देखो दूसरा रूट्स का आंसर आ रहा है। क्लियर? और ये दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है? जो पहला रियल रूट्स है वो रियल रूट्स आ रहे हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स है उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रियल रूट्स। सी, so what is omega into omega square? It is omega cube, and I can say that omega cube equals to 1. This is the formula which we are going to use and complete this exercise. Okay, omega cube kya hoga? 1. So note down, if omega is the cube root, complex cube roots of unity, I repeat, if omega represents the complex roots of unity, then omega into omega square, that is omega cube, will be equals to what? 1. How? Omega into omega square is equals to what? 1. तो ये हो गया तुम्हारा ओमेगा क्यूब। देखो ये ओमेगा, ये इसका स्क्वायर और ये दोनों का प्रोडक्ट ये। एक बार ये पूरा अच्छे से कॉपी करो तो पहले। अच्छा, पहला बात ये तुमको समझ में आया तो ये जो तीन आंसर है ये क्लियर है? तो नाउ सी, इन एक क्या चीज डाउट है, मतलब आंसर्स में ये ना, सॉरी, जस्ट अ मिनट, तुमने क्या बोला समझे नहीं? ओमेगा का हाँ आएगा एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि ओवर वन आना ही पड़ेगा ना। देखो क्यों, बिकॉज फिर तो हम लोग कर क्या, देखो ध्यान से देखना, तुम्हारा भी आंसर दे रहे हैं। नाउ आई रिपीट वंस अगेन, आफ्टर वी हैव कैलकुलेटेड दिस थ्री रूट्स, सी डेरिवेशन विल नॉट कम, बट अगर डेरिवेशन तुम्हारा क्लियर है तभी जाके तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा। मैं ये हमेशा बिलीव करता हूँ, इसीलिए डेरिवेशन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 यूज करो और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 यूज करो, ये दो ही तो यूज करना है, ये तो आएगा ही नहीं डेरिवेशन। बट फिर भी इसके ऊपर ध्यान दिमाग लगाना। देखो तीन रूट्स, एक एक अगर मान लो क्यूब रूट्स, सॉरी एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां से कितना रूट्स मिलेगा? तीन रूट्स, एक रियल होगा, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होगा एक दूसरे का। ठीक है, किसी दोनों में से एक को, ऐसा जरूरी नहीं कि पहला को ओमेगा लेना है, अगर हम दूसरा को ओमेगा ले ले तो उसका स्क्वायर करके ये मिलेगा। मतलब if this is omega, this is omega square, and product of these two things will be equals to the real roots. So this is what I have done. I have assumed this as omega. Clear? Let, so I am squaring both the sides. So omega square इस पूरा का square, 2 का square 4 हो गया, इसको मैं √3 minus I 1 का whole square लिख दिया। Apply a minus b whole square का formula. What is the value of I square? It is -1. Simplify this. -2 √3 I by 4 आया। 2 कॉमन लेकर के देखो एक बार, सिंप्लीफाई करके देखो, देखो ये आया कि नहीं। उसके बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो इसको और इसको, ये दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया। मैं एक्चुअली यहाँ पे तुमको रिलेट करना चाह रहा हूँ, रिलेशन से डिराइव कर रहा हूँ कि दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा रूट्स है, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके तीसरा रूट्स है। देखो एक बार सॉल्व करके ना। कुछ का आई थिंक कुछ का डाउट था कि ओमेगा क्यूब किसी एक रूट लेने से अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो क्या 1 नहीं आएगा? एब्सोल्युटली 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? बिकॉज तुमको पता है कि ओमेगा क्यूब मींस व्हाट? ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। क्लियर? एंड व्हाट इज ओमेगा इंटू ओमेगा? इट इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर मींस व्हाट? जब तुम इसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ ही जाएगा ना, तो वह दोनों का प्रोडक्ट 1 तो वही हुआ, एक्चुअली तो वही चीज हुआ। तो तुम एक चीज को क्यूब कर दो या फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, बात बराबर हुआ, बिकॉज इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, यू आर सेइंग दैट क्या मैं इसको क्यूब करूंगा तो आ जाएगा? एब्सोल्युटली आना है। क्यों? बिकॉज ओमेगा क्यूब इज ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। सो अगर हम इसको कोई भी दो को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिकॉज ये जो फॉर्मूला x प्लस वाई होल क्यूब आया, हम जो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कैसे आया? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एम आई करेक्ट? तो वैसे ही जब तुम ओमेगा इंटू ओमेगा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा। दैट्स व्हाई इट इज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर। नाउ
Let's see after adding all the three roots now. After adding all the three roots, what is the result? That is 1 minus 1 plus root 3i by 2 minus 1 minus root 3i by 2. Let us add. ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया. सॉरी, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट हटा देता हूं. ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस. नाउ वी फाइंड दैट, just note down everyone, plus root 3i minus root 3i gets cancelled, minus 1 becomes minus 2, and what is minus 2 plus 2? It is 0. What is 0 divided by 2? It is 0. So we find that तीनों रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है तीनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा? 0. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं that 1 plus omega square is equal to 0? Yes, everyone. 1 plus omega square is equal to 0. And these are the two things जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड, सॉरी ये एक्सरसाइज बेस्ड है ना 9F. तो 9F में हमको क्या करना है? ये दो चीज यूज करना है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स का जो सम है, कॉम्प्लेक्स रूट्स का क्यूब का जो रूट्स है, ठीक है, उसका सम जो होगा तीनों का रूट्स को ऐड करेंगे अगर हम लोग तो 0 के बराबर होगा. और क्यूब रूट्स का सॉरी ओमेगा का क्यूब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. दीज आर द टू थिंग्स जिसके ऊपर बेस्ड है पूरा ये एक्सरसाइज. तो एक बार कॉपी करो और ये दो चीज को ध्यान से देख के अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. दैट इज 9F. कॉपी करने का. डू यू हैव एनी डाउट हियर दैट सम ऑफ दीज थ्री रूट्स विल बी इक्वल्स टू 0? ये क्या है? तीनों रूट्स है, तो तीनों का रूट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0. where 1 denotes first root, omega denotes second, omega square denotes third roots. If you say that क्या मैं 1 के जगह omega cube नहीं लिख सकता हूँ? तो omega cube is equal to 1 only, तो इसीलिए 1 लिखो, ज्यादा सिंपल होगा, सिंप्लीफिकेशन में आसान होगा. Like one of you can you just exercise 9F का ये दो पेज जो है ना 9F का लेफ्ट और राइट वाला जो पेज है 54 एंड 55, इसको अपने अपने ग्रुप में एक बार मैसेज करो. तो वो भक्ति नगर वाले ग्रुप में और SF रोड वाले ग्रुप में, ISC बॉयज ग्रुप, और उसके बाद तुम्हारा बॉयज ग्रुप ये पंजाबी पड़ा वाला, अपने अपने ग्रुप में जो लोग है एक बार मैसेज करो देंगे, व्हाट्सएप करो तो दोनों पेज का फोटो. I'm waiting for a few minutes. अच्छा, मैसेज कर दिया सबने अपने अपने ग्रुप में? यस. अच्छा, सब ग्रुप में मिल गया. तो सारे ग्रुप में जो लोग हैं, क्वेश्चन है सबके पास. अब देखो एक बार. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 3 फर्स्ट. 1 नहीं करेंगे अभी हम लोग, 1 स्क्वायर रूट है. 1 2 बहुत सिंपल है, 2 में कुछ नहीं है. नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. So I want your attention here everyone, just note down. सबसे पहला चीज 1 plus omega square equal to 0 और omega cube equal to 1 को कैसे यूज करना है एक बार ध्यान से नोट करना सबको. जैसे तुमको बताया था मैंने कि I to the power 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होते हैं. तो जब भी I का पावर 4 से बड़ा होगा,
ठीक है, तो बस करना क्या, तुम लोग पावर को 4 से डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि i टू द पावर 4 1 होते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको i के पावर पे लिख देना। सो इफ आई डिवाइड 17 by 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? Remainder is how much? 1. So I to the power 1 is the answer. Exactly same way. Listen here, everyone. If you find anywhere omega to the power 9 or omega to the power 15 or omega to the power 20 or something like this, ऐसे कुछ भी अगर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है? ओमेगा का पावर जो भी होगा अगर वो 3 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उस पावर को 3 से डिवाइड करेंगे पहले हम लोग. So tell me, if I divide 9 by 3, what is the remainder? If I divide 9 by 3, what is the remainder? Can you tell me? 0. And what is omega to the power 0? 1. If you divide 15 by 3, what is the remainder? 0. And what is omega to the power 0? 1. If you divide 20 by 3, what is the remainder? Answer is omega square is the answer. So समझ में आया सबको? तो इस तरह से तुम लोग ये करना कि ओमेगा का पावर अगर 3 से बड़ा हो, बस पावर को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको ओमेगा के पावर पे लिख देना. अब ध्यान देना, एक बार 3 का 1 में बता रहा. So the question is 1 plus omega square whole to the power 4 is equals to omega. ये हम लोग को प्रूव करना है. Now कैसे यूज करना है ये चीज को ध्यान देना. अगर ये तीनों में से कोई भी दो चीज मतलब 1 प्लस ओमेगा मिल जाए कहीं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, so what is the value of 1 plus omega? Can you tell me? What is 1 plus omega square? समझ में आया? तो कोई भी अगर दो चीज मिले तो तीसरा से रिप्लेस कर दे. तीनों चीज मिले तब तो बहुत बढ़िया है. 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों अगर मिल जाए इस फॉर्म में तो बहुत बढ़िया है, तब तो डायरेक्ट आंसर 0 मिल जाएगा. So what is, so I'm taking left hand side. Now what is 1 plus omega square? It is minus omega. Can I write this as नेगेटिव नंबर का पावर इवन है अगर तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा. और यहाँ लिख देना सिंस 1 plus omega square equals to 0. ओमेगा टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा कैसे? If I divide 4 by 3, what is the remainder? 1. So omega to the power 1. या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, omega cube into omega. Omega cube is 1, 1 into omega is omega. You can show this step or you can directly write down this step and give the reason that omega cube equal to 1. This is what we have on the right hand side. So copy down this sum everyone and try question number 3 का number 2. सबको 3 का number 2 try करना. इसके बाद एक्सरसाइज 9 है, बोला ना. एक काम करो ना, तुम एक काम करो ना, किसी से एक बार तुमको वो भेज देगा. एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे तो हम क्लास, इसीलिए हम वो नहीं हम. ठीक है, किसी एक कोई एग्जाम भेज दो ना, इसको कुछ को भेज दो एग्जाम, वो भेज देगा ग्रुप पे. मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे फिलहाल के लिए, तुम एक बार भेज दो अभी. हाँ ठीक है, तुम ग्रुप में भेज दो. एवरीवन शो दिस, एवरीवन करो तो एक बार ये ट्राई. करना क्या है, एक बार ये लेके -8 प्रूफ करना है, एक बार इससे -8 प्रूफ करना है. ट्राई करो तो. Okay, and just it is very simple. If you get all these three terms in the same form, write 0. If you get these two terms, write minus omega square. If you get first and last term, write omega minus omega. If you get omega plus omega square, write down -1. This is what you have to do. So try once. पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इससे -8 प्रूव करो, फिर एक बार मिडल वाला पार्ट लेके ये प्रूव करो. वेरी गुड. बाकी लोग सबको ट्राई करो. बाकी लोग ट्राई करेंगे.
अच्छा, किससे ये नहीं हो पाया एनीवन? अगर ये हो गया जिससे, यू कैन ट्राई नंबर 3 and 4 बोथ, ओके? नंबर 3 and 4, 3 and 4 के बाद नंबर 5 करना है, और फिर मैं नंबर 7 बताऊंगा, ठीक है? एनीवन जिसका ये डाउट है ये वाला सम? एनीवन हियर जिसका ये डाउट है, ये नहीं हुआ ये प्रूफ, तो बोलो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ठीक। So listen here. So I'm taking left hand side. So it is 1 plus omega minus omega square का होल क्यूब, ठीक है? अब ध्यान देना एक बार, मैंने बोला था ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में से कोई भी अगर तीनों बन जाए तब, हाँ बोलो। ये तो एकदम लेफ्ट ही है ना, ये तो एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम ही है। इसको मिरर्ड एक्सप्रेशन ले लेना, इसको लेफ्ट ले लेना, ये राइट एक्सट्रीम एक्सप्रेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या खाली ये लिखो ना, ये बस, अगर तुमको इसके लिए कुछ नहीं है ना, बस ये लेके इट इज इक्वल टू -8 प्रूव, फिर ये लेके इक्वल टू -8, उसके लिए कोई बात नहीं। नाउ सी एवरीवन, व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? 1 प्लस ओमेगा इज हाउ मच? माइनस ओमेगा स्क्वायर, clear? What is minus omega square minus omega square? It is -2 omega square. -2 का होल क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? -8. Power gets multiplied, it becomes omega to the power 6. As I said you that if the power of omega is more than 3, divide that power by 3 and write down the remainder. If you divide 6 by 3, what is the remainder? It is 0. Omega to the power 0 is how much? 1. तो डायरेक्ट यहां लिख देना ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई इट इज -8. सिमिलरली टेक दिस एक्सप्रेशन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच? बस तुमको ये रिड्यूस करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो कोई भी दो चीज दिख जाए उसको तीसरे से रिप्लेस कर दो। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच? माइनस ओमेगा. If you add this 2, you'll get -2 omega. What is -2 omega का whole cube? It is -2 to the power 3 into omega to the power 3. -2 to the power 3 is -8 and omega cube is 1. So answer is -8. It is proved everyone. इससे ये prove हो गया, इससे भी ये prove हो गया. So बाकी अगर ये अभी हो गया, so you are going to try number 3 का 3 and 3 का 4. Hurry up. थ्री का 3 हुआ सबका? यस. 3 का 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 and 6. 5 and 6 and then I'll show you number 7. So anyone has got doubt in number 3 का number 3?
एनीवन? नहीं है। 3 का 4 में किसी को डाउट है? 3 का 4 में सबसे ज्यादा बेटर क्या होगा बोलो तो? डिनोमिनेटर में 1 प्लस ओमेगा है, उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, और दूसरा वाला में 1 प्लस, हाँ बोलो। 3 का 4 के बाद नंबर 5। ओके, और उसके बाद दूसरा टर्म में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, उसको माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दो, फिर एलसीएम ले लेना, हो जाएगा। वन का 3 प्लीज कैन यू रिपीट वंस अगेन? 3 का 3 के 1 का 3? हाँ, अच्छा बताओ तो तुमने पहले क्या किया? तुमने ट्राई किया तो कैसे ट्राई किया बताओ तो एक बार अनम्यूट करो अपना डिवाइस। Please unmute your device so that I can help you, like where you are making mistake. This is very important to know your mistake. तो बोलो तो तुमने क्या किया पहले स्टेप में, बताओ तो। Yes. Please unmute your device. हाँ तो वैसे ही करना था। 1 को पूरा से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस ओमेगा को पूरा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ध्यान देना एक बार। 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब। हो गया? अब बताओ एक बार मुझे कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, बताओ तो। 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, हो गया ना? 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ध्यान से नोट करना, हम लोग को क्या प्रूव करना है बताओ एक बार? हम लोग को इस सम में प्रूव करना है 3। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेके इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख सकता हूं? क्लियर? एंड व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? इट इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. So what is minus into minus? Plus. 2 plus 1 is how much? 3. 6. अगर ना किसी को कोई डाउट होता है ना और मैं जब बोलता हूँ कि अनम्यूट करो, तो मैं ऐसे नहीं कि मैं क्यों बोलता हूँ कि तुम्हारा जो मिस्टेक्स है तुमको पता चले, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने ये ट्राई किया और मेरा नहीं हुआ, किसके कारण नहीं हुआ, तो वो मैं बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो यू मस्ट अनम्यूट योर डिवाइस। रुक जाओ, 6 के बाद रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। Yeah, I'll explain, just a minute. अच्छा, 3 का 4 हो गया सबका? 4 में किसी को डाउट है? जैसे कि 3 में डाउट था, 4 में बस करना क्या बोलो तो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा देना, और दूसरा वाला टर्म में जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहां पे माइनस ओमेगा लगा देना, फिर एलसीएम ले लेना, सॉल्व हो जाएगा। पेन लेके लिख के बता रहा हूँ मैं, 5 बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो 3 का 4 में किसी को डाउट नहीं है तो सो मैं 5 एक बार बता देता हूँ। So listen here everyone. So I said you that if you find 1 plus omega square तीनों एक साथ, तब तो बहुत बढ़िया, जीरो लिख देना। लेकिन अगर तीनों एक साथ ना मिले, उसमें से कोई भी दो टर्म मिल जाए,
तो भी हम लोग उसको आसान बना सकते हैं। कैसे? दो टर्म मिल जाए तो तीसरे से रिप्लेस कर दो। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे +3 ओमेगा स्क्वायर है। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ तो एक बार? 3। इफ आई टेक 3 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ पे 1 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। +5 ओमेगा जैसे है वैसे रहेगा। What is 1 plus omega square? 1 plus omega square is minus omega. Okay? So ये हो गया -3 omega plus 5 omega whole to the power 6. What is 5 omega minus 3 omega? It is 2 omega. Is this clear? तो ये हो जाएगा 2 to the power 6 into omega to the power 6. 2 to the power 6 is how much? 64. ओमेगा टू द पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा टू द पावर 6 को ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 6 होगा। ओमेगा क्यूब इज 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर? 1। और डायरेक्टली जो मैंने तुम लोग को स्टेप्स बताया था कि अगर ओमेगा का पावर 3 से बड़ा होगा तो पावर को 3 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा बस उसको पावर पे लिख देना, ओमेगा की पावर पे। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। उसके बाद दूसरा वाला इसमें पार्ट है 3 plus 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेना पहले, तो बचेगा 1 plus ओमेगा। Now what is 1 plus omega? 1 plus omega is minus omega square. So this becomes -3 omega square. Simplify करो तो ये हो गया 2 omega square. 2 to the power 6 omega square to the power 6. Power gets multiplied and omega to the power 12 कितना हो जाएगा? 1। कैसे? अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। एंड ओमेगा टू द पावर 0 इज 1। बस ये रीजन लिख देना कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ये क्यों हुआ? ये ओमेगा टू द पावर 12 क्यों हट गया? बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसीलिए ये बस 64 बचा। नेक्स्ट नंबर 6 तो हो गया होगा, फटाफट करो, बहुत इजी है नंबर 6। वन करना है, वो अलग टॉपिक है, तो स्क्वायर रूट वो पहले, बाकी सब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद 1 नंबर करेंगे। अच्छा, इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा है ना कि ओमेगा टू द पावर 6 क्यों 1 हो जा रहा है, ओमेगा टू द पावर 12 क्यों 1 हो जा रहा है? अगर किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। एनीवन? आई कैन एक्सप्लेन यू 2 वे। सी, लाइक ओमेगा टू द पावर 12 है, इसको ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 4 जा 12, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। व्हाट इज ओमेगा क्यूब? इट इज 1, 1 टू द पावर 4 इज 1। और डायरेक्टली मैंने जो बताया था कि पावर को 3 से डिवाइड कर देना और जो रिमाइंडर आएगा उसको ओमेगा के पावर पे लिख देना। सो ओमेगा टू द पावर 0 इज 1। नाउ आफ्टर नंबर 6 आई विल एक्सप्लेन यू नंबर 7, एंड 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। एग्जाम के लिए तुम लोग मार्क कर लेना नंबर 7, 8 और 9 और 10 भी, 10 11, 7 8 9 10 11। तुम बस मान के चलो कि एग्जाम में ये सब सम आ सकता है। 90% चांस है कि यहां से जब ये आएगा सम तो तुम देख लेना ये सब सम्स ही आएगा। और मैंने ये जो देखा है कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ये फेवरेट सम होता है इस एरियाज का, ये एरिया से समझ में आया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है एग्जाम में तो। सो फ्रॉम 7 to 11 प्लीज मेक श्योर, प्लीज डू इट थॉरली। एग्जाम में आएगा ही, 100% आएगा, मान लो आएगा एग्जाम में, कोई इसमें सेकंड थॉट ही नहीं है। तो मैं पहले सम नंबर 7 बता रहा हूं।
नाउ 7 नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखो। अच्छा, कोई बता सकते हैं, लेट मी टेस्ट योर बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ऐसे मैं पूछ रहा हूं। एक बात बताओ, किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, सो रिमाइंडर क्या आएगा, बता सकते हो तुम लोग? रिमाइंडर, यस टेल मी। वेरी गुड, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, 0 1 2। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 1 2 3। वेरी गुड, सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक, एग्जैक्टली दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, और ये पता होना चाहिए। और ये तुमको कोई शायद बताएगा नहीं, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन से देखो, तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम बस इमेजिन करो किसी भी नंबर को डिवाइड करके नेचुरल नंबर को 3 से, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 या तो 2, 3 आ ही नहीं सकता है। डिवाइड जब करोगे तो 3 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। जैसे मान लो 12, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब हुआ कि ये जो 3 है, ये 12 का क्या है? फैक्टर है। इज दिस क्लियर? 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। अगर मान लो मैं 13 को 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 1 आएगा, देखो, विच इज लेस देन 3। इफ आई डिवाइड सपोज 14 by 3, remainder is 2, which is less than 3. So if you divide any natural number, any positive natural number by 3, the expected remainders will be less than 3 but also 0. Means the expected remainders are 0, 1 and 2. Okay, now listen carefully everyone. और ये तीनों केस में जिसमें रिमाइंडर 0 है, it means that 12 is divisible by 3, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब the number is not divisible by 3. अगर मान लो 3 डिवाइजर है, 3 इज द डिवाइजर, जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, डिवीजन के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे 3 डिवाइजर है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर उस नेचुरल नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आया, क्या आ सकता है? 1 या 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेचुरल नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, या हम ऐसे बोल सकते हैं वो नेचुरल नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। एक ही बात हुआ, 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तभी वो 3 से डिविजिबल भी होगा। वेरी सिंपल थिंग, स्ट्रेट, दे आर, आई मीन दोनों एकदम मतलब डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, मल्टीपल ही डिविजिबल होगा। 3 का मल्टीपल 3 है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, 3 का मल्टीपल 9 है तो 9 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ जस्ट नोट डाउन। Now, just try to understand the question first. I am taking the second part of the question. और के पहले वाला भी वही है, बाद वाला भी वही है। तुम बाद वाला पहले देखो, देखो और के पहले और के बाद है, लेकिन तुम और के बाद वाला ध्यान देना। So the question is given 1 omega square are the cube roots of unity. Clear? These are the cube roots of unity. So if these are the cube roots of unity, what conclusion can you make from it? You can conclude that omega cube equals to 1 and 1 plus omega square equals to 0. You don't have to prove because you already mentioned it कि 1 omega square are the cube roots of unity. तो omega cube क्या हो जाएगा? 1, और तीनों का सम कितना होगा? 0. Mark it as 1 and this is 2. इसको यूज करके हम लोग ये सम को प्रूव करेंगे। बट सम क्या है? सम है ये दिया हुआ, देखना एक बार। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n is equals to 2 if n is a multiple of 2, sorry, multiple of 3. आंसर इज -1, इस पूरा का आंसर -1 है if n is not a multiple of 3. If n is not a multiple of, समझ में आया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 omega square are the cube roots of unity.
इसका मतलब है कि अगर ये तीनों क्यूबिट्स ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 होगा और तीनों का सम 0 होगा, ठीक है। और प्रूव हम लोग को ये करना है कि ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 2। तब जब n क्या होगा, n मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो, और जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो फिर इसका आंसर क्या होगा, -1 आएगा। ये हमको प्रूव करना है। नाउ लिसन एवरीवन, वेरी गुड। एक बार ध्यान से सबको लेकिन फिर भी नोट करना मैं कैसे कर रहा हूं। नाउ n when divided by 3, let q be the quotient and r be the remainder, means and r be the remainder where we find that the value of r is either 0 or 1 or 2. Do you agree that अगर मान लो मैं n को 3 से डिवाइड करूंगा तो q will be the quotient and r will be the remainder. Yes everyone. मैं अगर मान लो मैंने n को 3 से डिवाइड किया, जैसे मान लो मैंने 13 को 3 से डिवाइड किया, तो फिर हम बोल सकते हैं कि 13 is equals to what, divisor into quotient plus remainder. If I divide 15 by 3, I can write 15 as 3 into 5 plus 0. If I divide 14 by 3, I can write 14 as 3 into 4 plus 2. So exactly same way, if you divide n by 3, let us assume that q is the quotient, r be the remainder, when the value of r will be either 0 or 1 or 2. Therefore, we can say that n, that is dividend, is equals to divisor into quotient plus remainder, where all possible values of r will be 0, 1 and 2. r का सारा possible values क्या होगा, 0, 1 and 2. Now let us make different cases. Case 1, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, ये सपोज आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, but left hand side is omega to the power n plus omega to the power 2n. Now in the first case, I am assuming that the value of r is 0. Case 1, if the value of r is 0. If the value of r is 0, what is the value of n? 3q plus 0, that is 3q. अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जहां पे n है, वहां पे n के जगह पे हम लोग 3q रिप्लेस कर देंगे. So we have omega to the power 3q plus omega to the power 6q. Can I write this as omega cube whole to the power q? और इसको लिख सकते हैं हम लोग omega cube whole to the power 2q, because power gets multiplied. What is the value of omega cube? It is 1. ये भी 1 हो जाएगा. Now 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है, 1, तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 2. ठीक है. Now case 2. Case 2, when the value of r is 1. If the value of r is 1, it implies that n will be how much? If the value of r is 1, what is the value of n? It is 3q plus 1. Okay. So just everyone just copy down till here once. एक बार यहाँ तक कॉपी करो. देखो तुमको ना इतना स्टेटमेंट भी लिखने का जरूरत नहीं है, काफी बड़ा हो जाएगा. डायरेक्ट लिख दो ये, लेट n equals to 3q plus i. डायरेक्ट ये लिख दो, इतना स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं. Because when n will be divided by 3,
क्यू इज द क्वेश्चन, ये लेट ले लो, और आर का वैल्यू क्या होगा 0 1 and 2. नाउ आई एम टेकिंग केस 2. तो केस 2 में क्या होगा, आर एन का वैल्यू 3q + 1 हो गया. अब जहां पे n है वहां पे 3q + 1 रिप्लेस कर देते. तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 3q + 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 into 3q + 1. See, I can write this as omega to the power 3q into omega to the power 1, because when base is same, power gets added. इसको लिख सकते हैं हम लोग omega to the power 6q + 2. We can write this as omega cube whole to the power q. We can write this as omega to the power 6q into omega square. Is this clear, everyone? Because when base is same, power gets added. What is the value of omega cube? It is 1. इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 2q. 1 to the power anything is 1. 1 into omega is omega. ये हो गया 1. 1 to the power 2q is 1. तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर. What is the value of omega plus omega square? It is -1. Now take the third case. In the third case, the value of r will be how much? 2. So it implies n will be 3q + 2. अब जहां पे n है वहां पे 3q + 2 रिप्लेस कर देना. We can write this as omega to the power 3q into omega square, because when base is same, power gets added. ये हो जाएगा 6q + 4. ठीक है, +4. We can write this as omega cube whole to the power q into omega square. We can write this as omega to the power 6q into omega to the power 4. What is the value of omega q? 1. 1 to the power q is 1. तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 2q. ये हो गया 1. तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4. You know that if the power of omega is more than 3, divide that power by 3 and write down the remainder. Now what is omega plus omega square? It is -1. Now case 1 में r का वैल्यू 0 है, इसका मतलब n is a multiple of 3. So if n is a multiple of 3, what is the answer we are getting? 2. देखो यहाँ पे जब n multiple of 3 होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2. और देखो बाकी दो केस में n is not a multiple of 3 because remainder is 1 and here the remainder is 2. So in the other two cases, we are finding that what is the answer of this expression? It is -1. Okay? But बहुत लोग शायद हमको लगता है क्या किया होगा कि सिर्फ कोई एक ही स्टेप कोई एक ही पार्ट लिख के शो कर दिया होगा, वैसे करके मार्क्स नहीं मिलेगा. मल्टीपल चॉइस में तो कोई बात ही नहीं है, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता तो उनको तीनों केस शो करना पड़ेगा. दिस इज ओके. सो फ्रॉम हियर वी कम टू द कंक्लूजन. हाँ बोलो. हाँ, सो एनी अदर इंटीजर का मतलब क्या होता है? एनी अदर इंटीजर मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है. अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो n ऐसा होगा. एनी अदर इंटीजर मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा. तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो क्या होगा? n या तो 3q + 1 होगा या तो 3q + 2 होगा. जैसे मान लो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 12 क्या होगा? 3 into 4 + 0. और कोई नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर या तो 1 होगा या तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा. ठीक है, यही हम लोगों ने देखा केस 1, केस 2 एंड केस 3. नाउ लिसन हियर, ये सब में अगर मान लो तुम लोग एक बार ये ट्राई करना, देखना वापस से. अगर डाउट है तो मैं वापस से नेक्स्ट डे रिपीट कर दूंगा. हम लोग आज के लिए एक बार इतना ही रहने देते हैं. कॉपी कर लो और मैं होमवर्क मार्क कर देता हूँ तुम लोग को जो करके आना है नेक्स्ट डे. लगभग ये पूरा एक्सरसाइज ही करके आना है. ठीक है, सिर्फ नंबर 1 छोड़ के.